Okay, students, in today's class, the thing which will be covered, that is basically about the different themes of the novel The Pearl, which we discussed, studied, or I taught in the previous class or the previous tutorial. Today, the same novel will be discussed in the light of different themes which are present in the novel The Pearl, written by Steinbeck. Now, some of the themes I have collected and I will discuss in detail. The very first theme which will be present or which you will come across, that is greed. Kaise? We'll have to prove. The central theme of The Pearl by John Steinbeck is now greed, destroy lives. I think everybody accepts the fact. The story introduces the protagonist Kino and his wife Yona living a simple and happy life. But things turn around when Kino discovered a large pearl. Initially, he saw the pearl as a way to help his son who was stung by a scorpion. However, he gets consumed by the thoughts of wealth and greed. It starts to take over. The news of Kino possessing the pearl spread among the community, and with it also spread greed. Soon after, his friends and neighbors became his enemies. In the end, Kino loses everything: his son, moral values, and relationships. So, very first thing is the greed. He himself was becoming greedy. The moment he found that, so he took it as a chance to change his lifestyle. But at the same time, the people who were around him, they were also belonging to the lower class, and the people, those who were belonging to the upper class, they got jealous. They started envying him, and everybody was thinking in terms of collecting or snatching or getting this pearl from him. But what happened? Towards the end of the novel, he lost everything: his home, his simple life, his own son. And we got the message that greed is a curse. So whatever you have, one must be thankful. And if you start thinking about more and more, so whatever you have, you may lose that too. And this is what happened to the same personality, Kino. This was the first theme, and the first theme was greed. Second theme, the novel themes of the novel still continue. There are some songs which are really very important. We'll be discussing about that. The songs of the family accompanies the life sustaining morning activities, and later on as the family flees from their pursuits. Basically you would be confused कि भाई song तो हमने पढ़ा ही नहीं नॉवल में. Basically बेटे songs क्या है? ये जो उसके अंदर एक पैदा होने वाली मुख्तलिफ कैफियत थी, और नॉवल के अंदर मुख्तलिफ लोगों के अंदर मुख्तलिफ जो सिनेरियो पल को लेकर मुख्तलिफ जज्बात जो पैदा हो रहे थे, जो लालच भरे ख्यालात पैदा हो रहे थे, ये कह लीजिए प्रिक्स ऑफ कॉन्शियंस, ये इंसान के अंदर जमीर की जो आवाज है. यानी ऐसा कोई सॉन्ग नहीं है जो गाया गया, जो पढ़ा गया. ये बेसिकली इंसान के जमीर की आवाज है, जो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स के थ्रू राइटर ने आपके सामने इसको रिप्रेजेंट किया. ये तो एक बात थी. मैं इन सॉन्ग्स को बाद में अलहदा से डिस्कस करता हूं. अगली थीम देखते हैं. द पर्ल आल्सो टैकल्स डेस्टिनी एंड रेसिज्म. ये भी एक थीम है. वो कैसे? Kino has been taught by his father that God has plans for everyone and that humans should not strive beyond what is meant for them. देखिए ये बात तो हर कोई मानता है कि हर एक इंसान के नसीब में जो लिखा है वो तो मिलेगा, और यही वो बात है जो राइटर कीनो जो सेंट्रल कैरेक्टर है उसके वालिद साहब ने उसे पढ़ाई कि हर एक के लिए एक प्लान कुदरत ने बनाया है, और उससे आगे कितनी भी कोशिश कर ली जाए मिलना उतना ही है जितना उसके नसीब में है. ये वो चीज थी. क्या कहता है? His father said, each man and woman is like a soldier sent by God to guard the castle of the universe, and some are in the ramparts and some for the deep in the darkness of the walls, but each one must remain faithful to his post, else the castle in his danger from the assaults of the hell. Basically कहने का मतलब ये है कि हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ मुंतखब है, जो है उस पर सेटिस्फायर है. जो छोटी सी जिंदगी, जो छोटी सी चीजें आपको मिली है, खुशी वेल्थ से नहीं, खुशी आपस के रिलेशन से, इंटरनल फीलिंग से, इंटरनल सेटिस्फेक्शन से मिलती है. और उसी पे अगर इंसान कयास कर ले बजाय इसके कि वो ख्यालों की दुनिया में रहना शुरू कर दे, तो डेफिनेटली जो कुछ उसके पास है उससे भी सेटिस्फेक्शन खत्म हो जाएगी. कहते हैं, डिस्पाइट दिस एडवाइस Kino pushes against his fate,
by attempting to sell the pearl, learning to his family's destruction, leading to his family's destruction. बात वही, जो बात बाप ने की वो तो ठीक थी, जो है उस पर खुश रहो, कनात करो, and whatever is not written in your fate, why you are fighting for that? But he went against the suggestion or advice of his father, and what happened? Finally he led towards his family's destruction. As we know what happened. आगे कहते हैं, as a poor indigenous man, Kino faced racial discrimination. When his son Coyotito got in, the doctor refused to see him. He was told, have I nothing better to do than cure insect bites for little Indians? I am a doctor, not a veterinarian. यानी वेटनरी डॉक्टर कहते हैं जो जानवरों का डॉक्टर होता है मुख्तलिफ चीजों. अब यहाँ पर रेसिज्म क्या है? डॉक्टर की ये जो स्टेटमेंट थी बेसिकली शोइंग व्हाट? प्रेजुडिस. He was representing upper class, and just because of his race and just because of his poor class, he was not ready to treat him. लेकिन हमें पता चला कि जब उसे ये पता चला कि इसके पास एक पल है तो यही डॉक्टर उसको ट्रीट करने आ भी गया. तो यहाँ पर रेसिज्म को भी रिप्रेजेंट किया गया है जो कि यहाँ से रिप्रेजेंट हो रहा है. तो डेस्टिनी एंड रेसिज्म भी इस नॉवल की एक थीम है. अगली थीम क्या कहती है? कीनोस ट्रांसफॉर्मेशन. आपसे एक सवाल राइटर डिस्कस कर सकता है. Write down something about the Kino's transformation in the novel. Transformation क्या मतलब? वन स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ मूवमेंट, एक सोच से दूसरी सोच की तरफ जाना. वो कैसे? कहता है Kino's obsession with wealth, यानी दिमाग के अंदर एक खन्नास तो भर गया था कि भाई वेल्थ, पैसा चाहिए. Changed his character. Initially, he saw his family as his most valued asset. मैंने आपको पहले भी बताया कि केनो जो एक प्रोटैगनिस्ट हीरो था नॉवल का, उसके लिए अपनी फैमिली से बढ़कर कुछ भी नहीं था, और उसके दिमाग में जो सबसे बड़ा खन्नास भर चुका था वो था दौलत. वो यही सोचा था इस पॉवर्टी से हट के जब पैसा मिलेगा वो अपनी फैमिली को चेंज करेगा, सबसे पहले बच्चे का इलाज करवाएगा और अच्छी जिंदगी देगा अपने घर वालों को. बट एज ग्रीड टेक्स ओवर, ही बिकम्स वायलेंट when he catches his wife trying to get rid of the pearl and beats her. His actions show how out of character he has become due to ambitions of wealth brought by the pearl. देखिए, the only personality who recognized or smelled the right and who was aware of the danger attached with the pearl, that was the wife. She was satisfied whatever life they were living. She warned him not to involve yourself in daydreaming, but he kept on beating. He started a very violent attitude. देखिए, violent attitude का मतलब सबसे बड़ी बात है कि अपनी बीवी को मारना पीटना शुरू कर दिया. You're wrong. This is the only hope. This is the only source which can change the life. वो ये सोच रहा था. तो इससे क्या हुआ कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई? एक अच्छा इंसान एकदम बदल गया. देखिए, जब एक इंसान ग्रीडी होता है ना, एक्सट्रीमली ग्रीडी, तो वो तमाम हदें क्रॉस कर जाता है. ऐसे नहीं कहते ग्रीडी इज अ कर्स. और जब एक इंसान दौलत के नशे में धुंध हो जाए तो उसको अच्छे बुरे का कोई फर्क मालूम नहीं होता. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन थीम है ना, वही कीनोस का एक कैरेक्टर पहले वाला और एक कैरेक्टर बाद वाला दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक इंसान इतना वायलेंट हुआ कि बीवी को मारने पर तुल गया. उसने ये भी नहीं देखा कि कितने खतरात उसको लाक हो सकते हैं. यानी दौलत के नशे ने उसको इतना क्रेजी कर दिया कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो गया. अब बेटी, अगर आपसे पेपर में एक सवाल आ जाए कि सिंबोलिज्म से रिलेटेड तो बहुत सी चीजें इसके अंदर, सिंबल, अलामती बात, मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो डायरेक्ट नहीं होंगी, जिसको सिंबॉलिकली आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज यू कम अक्रॉस अ क्वेश्चन दैट डू यू फाइंड एनी सिंबल इन द नॉवल और इज द पर्ल सिंबल ऑफ एनीथिंग रिप्रेजेंटेड? एलाबोरेट. गौर कीजिएगा. द पर्ल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टोरी एज अ सिंबल ऑफ होप. गौर कीजिएगा. होप, healing and opportunity. Hope, अमीर बन जाऊंगा. Healing, मेरा बच्चा सेहतयाब हो जाएगा. Opportunity, यही चांस है. बिक गया अच्छे दामों तो जिंदगी बदल जाएगी. फिर कहता है, at first Kino wanted to use the pearl as a way to afford medical treatment for the son. पहली चीज तो ये थी, बच्चे को काटा है बिच्छू ने, and he wanted to change, he wanted to treat his son. दूसरी बात कहता है, but as time goes on, the pearl comes to symbolize greed and corruption. अब ये लालच में बदल गया कि नहीं भाई, जिंदगी तो बदलनी इसने. और करप्ट कैसे होना चाह रहे थे भाई? एक नहीं, सारा माशरा ही जो उसके इर्द गिर्द था, सारे के सारे लालची बन गए. और करप्ट क्या था? जो डीलर थे वो भी करप्शन करने को सोच रहे थे.
और यहां पर बहुत सी चीजें ऐसी हो गई कि करप्शन, ग्रिड, बहुत सी चीजें पर्ल ने एक्सपोज कर दी। यानी ये एक पल था, लेकिन सारे कैरेक्टर्स को एक्सपोज करने में इसने मिनट्स लगाया। एवरीबॉडी वाज जेलस, इवन ही हिमसेल्फ गॉट करप्ट। जैसे अभी हमने पढ़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक अच्छा इंसान भी इतना बुरा हो गया कि बीवी को मारने बदल के उसकी अच्छी नसीहत भी मानने को तैयार न हो। Kino becomes so consumed with the promise of what the pearl could bring that it destroys him and everyone around him. Kino realizes this and throws the pearl, but it's too late. In the beginning, he was not able to realize this truth. उसको नहीं समझ आ रही थी बात, as he was being advised by his wife, छोड़ दो, नुकसान होगा। लेकिन but towards the end of the novel, he faced the music. He paid the price, खमियाजा भुगतना पड़ा और सब कुछ उसको खोना पड़ गया। तो ये सिंबल के बारे में अगर सवाल आए तो बेटे इन चीजों को थोड़ा एलाबोरेट करना पड़ेगा। अगली बात, अब मैं आ रहा हूं इंपॉर्टेंट सिंबल्स पे, और एलाबोरेट कर दिया। मैं कहता हूं in John Steinbeck's The Pearl begins as a symbol of hope, healing, and opportunity for Kino and his family. However, as their circumstances worsen and greed takes hold, it transforms into a symbol of destructive greed, envy, and corruption that leads to violence and ruin of their former life. अच्छी जिंदगी से बेड़ा गर्क हो गया, गरीबी से अमीरी के ख्यालात आ गए, अच्छे इंसान से बुरा इंसान बनना शुरू हो गया, माशरे में एक जेलसी फैल गई। कुछ इनिशियल जो सिंबलिज्म थे, अगर सवाल आता है तो पहला, होप एंड रिडेम्पशन। ये क्या है? कहते हैं इनिशियली द पर्ल ऑफर्स अ चांस फॉर अ बेटर लाइफ। एक बात, Kino dreams of using its wealth to pay for his son Coyotito's medical treatment, buy new clothes, and even send Coyotitos to school. यानी पहली चीज जो उसने सोची, होप, उम्मीद और रिडेम्पशन। यानी क्या करेगा कि वो तमाम चीजें जो उसकी जिंदगी में नहीं हो सकी, वो सब की सब क्या लेकर आ सकता है? ये एक पल लेकर आ सकता है। तो पहली तो होप थी और रिडेम्पशन थी, ठीक है। दूसरा, फैमिली एंड ट्रेडिशन। फॉर Kino, the pearl represents a way to improve the family's life and strengthen their connection to tradition and spiritual values. पहली बात यह कि जब ये अमीर होगा तो ऑटोमेटिकली माशरे में इसका स्टेटस भी बेहतर होगा, लोग इज्जत देना शुरू करेंगे। और दूसरा क्या होगा बेटे कि स्पिरिचुअल वैल्यूज क्या है, किसकी स्पिरिचुअल वैल्यूज भी बढ़ जाएंगी, ख्यालात बदलेंगे, सोच बदलेगी, वो अमीर हो जाएगा। तो इनिशियल बेसिस पर जो हमारा सिंबलिज्म है वो दो तरह के। अच्छा, इसके बाद एक और है दूसरे लेवल पे, इवॉल्विंग सिंबलिज्म। इवॉल्विंग सिंबलिज्म क्या है? ग्रीड एंड करप्शन, जिसकी हमने भी बात की। The desire for the pearl awakens greed in others, such as the pearl dealers as well as in Kino himself. The pearl becomes a source of conflict, attracting ill attentions and violence. पहली बात, ग्रीड और करप्शन। सारा माशरा ही बिगड़ गया, किनो खुद बिगड़ गया, और सारे के सारे सोच में थे कि इससे किसी तरह इस चीज को ले, और गलत काम करने पर, गलत तरीके से इसको ट्रीट करने पर वो तैयार हो गए। दूसरी बात, evil. For Kino's wife Yona, the pearl becomes a symbol of pure evil and destruction, as she recognizes its dangerous influence early on. क्योंकि उसको पहले पता चलना शुरू हो गया था आस पास के लोगों से कि अब हमारे लिए कोई खैर ख्वाह तो कम, नुकसान देने वाले बहुत लोग। और यही वो शख्सियत थी जिसने सबसे पहले खतरे का एहसास किया, हस्बैंड को समझाया। बट व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द हस्बैंड? ही वाज टोटली लॉस्ट, ही वाज wrapped in the dreams of being wealthy, changing of lifestyle, so did not accept. हुआ क्या? Destruction. The pursuit of the pearl leads to its destructive nature, ultimately bringing about the ruin of Kino's family. It symbolizes how the pursuit of material wealth can corrupt and destroy even the most precious things in life. जब इंसान अंधा हो जाता है ना दौलत के नशे में, तो डिस्ट्रक्शन ज्यादा दूर नहीं होती, क्योंकि लालच बुरी बला है। ज़ाहिरी तौर पर वो बड़ा एक अमाउंट नजर आ रहा होता है, जिंदगी में चेंज नजर आ रहा होता है। इट्स सॉर्ट ऑफ डे ड्रीमिंग, बिल्डिंग ए कैसल इन द एयर। इसे नहीं कहते हवा में किले तामीर कर लेता है इंसान, और वो अपने इस रास्ते में जो इसने एक थॉट, देखिए वो फिजिकली तो बाद में करप्ट होता है, अगर वो मेंटली एक दफा करप्ट हो गया, अगर उसके ख्यालात एक दफा करप्ट हो गए, तो उसको सीधे रास्ते पर आना बड़ा मुश्किल है। यही हुआ किनो के साथ। और आखिरी बात क्या, अल्टीमेटली क्या हुआ? द पर्ल सिंबलाइजेस द कॉशनरी टेल दैट वर्ल्ड डज नॉट गारंटी हैप्पीनेस. It ultimately leads to tragedy for Kino, his family, and their community. तो क्या हुआ? The pearl symbolizes what? The cautionary, एक खबरदार करने वाली टेल, कि हर वो बंदा जो इस तरह से
एक अच्छी जिंदगी छोड़कर सिर्फ ये कि कुछ चेंज आ जाए, अपेरेंटली गलत रास्ते पे जाएगा, तो उसको भी इसी तरह के नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। ये तो था सिंबॉलिक हद तक जो है आपके नॉवल की डिटेल्स। इसके बाद जो अगली चीज है वो हम अगले फेज के अंदर कवर करेंगे, और वो बहुत मुख्तसर सा है। जब मैंने तस्करा किया शुरू में सॉन्ग्स इन द नॉवल द पर्ल, आपके सामने एक सवाल आ सकता है, अब आप हैरान है, मैंने पहले भी बताया कि नॉवल के अंदर कोई सॉन्ग गाया नहीं गया है, तो ये सॉन्ग है क्या? वो मुख्तलिफ स्टेजेस पर मुख्तलिफ तरीकों से किस चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और ऐसे ही सवालात इस नॉवल के अंदर से इंक्लूड किए जाएंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह इन द कमिंग क्लास आई विल इंक्लूड द रिमेनिंग डिटेल्स ऑफ द नॉवल। थैंक यू वेरी मच।